جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو۔ جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دنیا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں۔ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔
तुम्हारा माफ कर देना तकवा से बहुत नजदीक है और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवारी ही सही। हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह के इसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि इनकी बीवियां साल भर तक फायदा उठाएं, इन्हें कोई ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं। जो वो अपने लिए अच्छाई से करें, अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। तलाक वालियों को अच्छी तरह फायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया, मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो अल्लाह ताला सुनता जानता है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या आपने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इस्राइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा, किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा, मुमकिन है जिहाद फर्द हो जाने के बाद तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब इन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे, भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाह के हम हैं। इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने इसी को तुम पर बरगुज़ीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बर्तरी भी अता फरमाई है। बात यह है, अल्लाह जिसे चाहे वो अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। इनके नबी ने इन्हें फिर कहा, इसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलजमी है और आले फिरौन आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते इसे उठा कर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। जब हजरत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो इसे न चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथों से एक
चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हजरत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम ताकत नहीं कि जालूत और इसके लश्करों से लड़े। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। जब इनका जालूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुमलिकत और हिकमत जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज से दफा ना करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजलो करम करने वाला है। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हकानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। बिलयकीन आप रसूलों में से हैं। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की, बाज के दर्जे बुलंद किए और हमने ईसा बिन मरियम को मोजज़ात अता फरमाए और रूहुल कुदस से इनकी तायीद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज आपस में लड़ाई बढ़ाई न करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तिलाफ किया। इनमें से बाज तो मोमिन हुए और बाज काफिर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। ए ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न तिजारत है न दोस्ती और शफाअत, और काफिर ही जालिम हैं। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊँग आती है न नींद। इसकी मलकियत में जमीन और आसमानों की तमाम चीजें हैं। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो इसके सामने है और जो इसके पीछे है, वो इसके इल्म में है। किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वसअत ने जमीन और आसमान को घेर रखा है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से ना थकता है ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं। हदायत जलालत से रोशन हो चुकी। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा। अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है और काफरों की औलिया शयातीन हैं। वो इन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। क्या तूने इसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में
झगड़ रहा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जलाता और मारता है, वो कहने लगा, मैं भी जलाता और मारता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तू इसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर पहुंचा रह गया और अल्लाह ताला जालिमों को हदायत नहीं देता। यह इस शख्स की मानद कि जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ, जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा, इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने इसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर इसे उठाया, पूछा, कितनी मुद्दत तुम पर गुजरी। कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, बल्कि तू तो 100 साल तक रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख बिल्कुल खराब नहीं हुआ। अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।